Good morning, my dear students. Today we will start the fifth chapter of Flamingo, and the name of the chapter is Indigo. It has been written by Louis Fisher. Actually, Louis Fisher wrote a book on Mahatma Gandhi, and the title of that book was The Life of Mahatma Gandhi. And it is said that although there were many books written on Mahatma Gandhi's life, but this was the most popular book written by any writer. So it was a biography of Mahatma Gandhi written by Louis Fisher, and from that book a chapter has been taken, and the name of the chapter is Indigo. Let me tell you something about Indigo. Indigo का मीनिंग है नील. इंडिगो इज अ कलर, नीला रंग. नील की खेती होती थी इंडिया में, and it was at the time of British era. Indian farmers were made to grow indigo on their land. Actually, it was not their land. Indian farmers were tenants, किराएदार, and the owners were Britishers. And there was a rule. It was especially in Bihar that the farmers had to grow indigo on the 15% of the land they had acquired from the Britishers, and they had to surrender the whole crop as rent of the land. Suppose a farmer had taken 10 एकड़, 10 एकड़ ज़मीन अगर किसी ब्रिटिशर से उसने किराए पर ली, तो 1.5 एकड़ पर उसे नील की खेती करनी होती थी, और वो सारी की सारी क्रॉप उसे उस 10 एकड़ के किराए के तौर पर सरेंडर करनी होती थी. सो यू वुड थिंक दैट इट वुड बी बेनिफिशियंट. 8.5 एकड़ तो बचती ज़मीन उसके पास, जिसमें वो कुछ और उगा सकता था और काफ़ी पैसा कमा सकता था. बट इट वॉज नॉट सो. एक्चुअली इंडिगो वॉज ग्रोन ऑन द मोस्ट फर्टाइल लैंड. जो सबसे उपजाऊ ज़मीन होती थी ना, उसी पर इंडिगो की खेती हो सकती थी. और एक बार नील की खेती होने के बाद उसकी फर्टिलिटी कम हो जाती थी. सो दे हैड टू चेंज द लैंड द नेक्स्ट ईयर. तो इस तरह से पूरी की पूरी लैंड पर इस तरह से नील की खेती कर करके वो बचती ही नहीं थी उनके पास कि कोई और किसी और क्रॉप को वो उगा पाते. सो इट वॉज वेरी डिफिकल्ट फॉर देम टू ग्रो समथिंग फॉर देमसेल्व्स. दे वर स्टार्विंग, and if they didn't grow indigo, they were beaten, they were punished. So they had been trapped badly. They had no way to come out of this system. It was an age old system in which they had been trapped. उनको उगाना ही था इंडिगो. And you know why? Because it was very profitable crop for the Britishers. They exported this crop all around the world and got a lot of profit by selling it. And it was used in dyeing the cloth. पूरे वर्ल्ड में कपड़ा बनाते वक्त जो कपड़ा बनाया जाता था उसको रंगने के लिए नील का प्रयोग किया जाता था. So Britishers were earning a lot of money, but Indian tenants, Indian farmers, Indian peasants were trapped. So this chapter tells us about the pathetic condition of Indian farmers, and it tells us how Mahatma Gandhi came in Bihar, in Champaran, to rescue these farmers from the clutches of these Britishers. And from there started India's greatest leader's career. We can say his political career started from here. महात्मा गांधी को पहचान ही यहाँ से मिली. चंपारण
वॉज द डिस्ट्रिक्ट ऑफ बिहार। और वहीं से महात्मा गांधी ने पॉपुलैरिटी हासिल की। ही बिकेम पॉपुलर अमंग द कॉमन पीपल ऑफ इंडिया बिकॉज ही यूज्ड हिज पॉलिसीज हियर। विच पॉलिसीज डिड ही हैव? He had the policies, he had the strategies of non-violence and truth. सच्चाई और अहिंसा के रास्ते पर चलकर महात्मा गांधी ने चंपारण बिहार के किसानों को इस चंगुल से छुड़ाया, और इसी के बारे में ये चैप्टर है। कैसे ब्रिटिशर्स को उन्होंने हरा दिया यूजिंग हिज नॉन वायलेंस एंड ट्रुथ। And he also showed the power of unity. He also showed the common man of India that they had the power. If they were united, they could do whatever they want. They could challenge the Britishers. In this chapter we are going to read this. So basically this is about Satyagraha in Champaran. Mahatma Gandhi had come from South Africa. 1915 में महात्मा गांधी साउथ अफ्रीका से आए, एंड इन साउथ अफ्रीका ही हैड बिकम पॉपुलर बिकॉज ऑफ हिज आश्रम ही हैड मेड देयर। बट इंडिया में उनको इतना नहीं जानते थे लोग, बट कुछ लोगों ने सुन रखा था दैट महात्मा गांधी उस टाइम पे महात्मा नाम तो नहीं दिया गया था, महात्मा की उपाधि तो नहीं दी गई थी। मोहनदास करमचंद गांधी के नाम से जानते थे सभी महात्मा गांधी को। बस इतना पता था कि भाई मोहनदास करमचंद गांधी नाम से कोई एक लीडर है जिन्होंने साउथ अफ्रीका के लोगों को मसीहा बन करके उनको आज़ादी दिलाई। आज़ादी तो नहीं कहेंगे, उनके लाइफ में बहुत बड़े चेंजेस लाए उन्होंने और उनको बड़ा प्रेरित किया। वहाँ पर एक आश्रम सेटअप किया, वहाँ गरीब लोगों की मदद की और उनको सेल्फ रिलायंट बनाया। सो इस तरह की चीज़ें उन्होंने वहाँ पर की थी। उसके बारे में आप चाहो तो पढ़ सकते हो डिटेल में, बट वी आर नाउ स्टडिंग अबाउट द सत्याग्रह इन चंपारण, सो आई कांट टेल यू द डिटेल ऑफ दिस हियर। सो महात्मा गांधी जब यहाँ पर आए उनको इतना नहीं जानते थे लोग, तो क्या हुआ, वो किसान जो यहाँ परेशान थे चंपारण में, दे वर बीइंग एक्सप्लॉइटेड बाय द ब्रिटिशर्स। उन्हीं किसानों में से एक किसान थे राजकुमार शुक्ल। दिस इज द पिक ऑफ दैट पर्सन। ही वॉज ऑल्सो अ फार्मर, ही वॉज ऑल्सो अ टेनेंट, and he wanted to get help of Indian political leaders. He was a very determined person, so he went to many leaders to get help for the people of Champaran, but no one came to help him. Someone told him that गांधी नाम करके कोई आदमी है, उससे मिलो, he would help you. तो जब इसको किसी ने बोल दिया कि गांधी नाम से कोई है जो हेल्प कर सकता है, तो इसके दिमाग में एक बात बैठ गई कि गांधी ही हेल्प करेगा। सो ही वेंट टू मीट गांधी एंड ही टोल्ड हिम अबाउट द पैथेटिक कंडीशन ऑफ द पीपल ऑफ चंपारण। महात्मा गांधी सेड दैट ही वॉज बिजी, ही हैड टू गो टू मैनी प्लेसेस एंड इट वॉज प्री डिसाइडेड, सो ही कुड नॉट गो विद हिम। महात्मा गांधी ने बोल दिया कि भाई मुझे बहुत जगह पे जाना है, पहले से ही प्रोग्राम सेटल है, सो मैं नहीं चल सकता तुम्हारे साथ। लेकिन ये बंदा इतना ज़्यादा दृढ़ निश्चय करके आया हुआ था अपने एरिया के लोगों की, अपने राज्य के लोगों की मुसीबत को हल करने के लिए, कि वो महात्मा गांधी के साथ ही बना रहा। जहाँ भी महात्मा गांधी जाते उनके साथ जाता, चाहे महात्मा गांधी कलकत्ता जाए, चाहे महाराष्ट्र जाए, कहीं भी जाएं साथ में चले जाते, क्योंकि ऐसे ऐसे लीडर्स के साथ बहुत सारे लोग चले जाते थे, तो वो भी साथ साथ रहता। महात्मा गांधी ने देख लिया कि भाई ये बंदा बड़ा डिटरमिंड है, ये जाएगा नहीं मेरी हेल्प लिए बगैर, तो उन्होंने बोल दिया कि भाई इस दिन मैं फ्री हूँगा और उस दिन आप आकर के मुझे ले जाना।
सो राजकुमार शुक्ला का डिटर्मिनेशन रंग लाया और महात्मा गांधी को लेकर के वो एक दिन पहुंच गए बिहार में। राजकुमार शुक्ला टुक महात्मा गांधी टू द हाउस ऑफ राजेंद्र प्रसाद, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। ही वॉज अ लॉयर एट दैट टाइम, यू नो, ही वॉज द फर्स्ट प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। तो उसके घर पे गए, वहाँ पर वो नहीं थे। तो हिज सर्वेंट्स आस्क देम टू वेट फॉर हिम, वो वहाँ पर बैठ गए। तो वहाँ पर एक ऐसी घटना घटित हुई जिसको बताना ज़रूरी है यहाँ पर। इट टेल्स अस अबाउट द बैड प्रैक्टिसेस ऑफ इंडिया अबाउट अनटचेबिलिटी। Mahatma Gandhi wanted to drink water and he wanted to pull out bucket of water from the well, but he was refused by the servants because they didn't know whether Mahatma Gandhi was untouchable or not. So it tells us how the condition was there in Champaran, in India especially. So they could not meet Rajendra Prasad, but Mahatma Gandhi went to Muzaffarpur from there, and he wanted to get more information. He knew that किसी भी मामले का सोल्यूशन करने से पहले दोनों पक्ष को सुनना जरूरी होता है, पूरी डिटेल निकालनी जरूरी होती है, क्योंकि जब किसी दो पक्षों के बीच में झगड़ा होता है ना, तो दोनों का पक्ष सुनना जरूरी होता है, क्योंकि अगर एक ही पक्ष हम सुनेंगे तो डेफिनेटली देयर वुड बी पार्शियलिटी। महात्मा गांधी पूरी डिटेल चाहते थे। वो मुजफ्फरपुर गए, वहाँ पर वो जेबी कृपलानी नाम के एक बंदे को जानते थे। ही वॉज अ प्रोफेसर इन अ कॉलेज एंड महात्मा गांधी हैड मेट हिम इन रविंद्रनाथ टैगोर आश्रम। तो उन्होंने उनको लेटर लिख दिया कि भाई आई एम कमिंग एंड आई नीड योर हेल्प। तो व्हेन महात्मा गांधी रीच्ड देयर, ही वॉज वेटिंग देयर विद हिज स्टूडेंट्स एंड महात्मा गांधी वॉज मेड टू स्टे इन द हाउस ऑफ JB Kripalani, sorry, Malkani, it was his name. We will read the chapter and we will find the names. I'm not sure about the names. तो जब हम चैप्टर पढ़ेंगे उसको डिटेल में पढ़ेंगे। JB कृपलानी के घर पे रुके थे या मलकानी के घर पे रुके थे? मलकानी के घर पे आई एम नॉट कॉन्फिडेंट, वो मलकानी के घर पे ही रुके थे शायद। तो दे बोथ वर government employees, and you know what was the government at that time? Britishers were the high command. So they were helping the people, they were helping the person who was against them. So it was very challenging for the employees, government officials, to help these kind of people, but they helped because they wanted to change the situation in India. So Mahatma Gandhi got information from there also, and then he went to Champaran. Sorry, before going to Champaran, people of Champaran had listened about it, that कोई महात्मा, कोई गांधी नाम का कोई बंदा आया है उनकी हेल्प करने के लिए। सो चंपारण से पैदल ही लोगों ने आना शुरू कर दिया मुजफ्फरपुर में, एंड महात्मा गांधी का इस तरीके से स्वागत हुआ। रेलवे स्टेशन पर जब महात्मा गांधी आए तो दिस काइंड ऑफ सीन वाज देयर। दे ऑल वर इंडियन फार्मर्स एंड दे वांटेड टू सी द पर्सन हु हैड कम टू देम रेस्क्यू देम। सो इतनी भीड़ थी, उनको लग रहा था कि ये बंदा उनको बचाएगा, उनकी हेल्प करेगा। सो महात्मा गांधी ने वहाँ पर जाकर के सारी डिटेल हासिल की मुजफ्फरपुर में, और ही मेट द ब्रिटिश ऑफिशियल्स ऑल्सो टू गेट द डिटेल्स, बट दे डिनाइड। उन्होंने कहा कि हम बाहर आउटसाइडर को कोई भी इंफॉर्मेशन नहीं देंगे। देन महात्मा गांधी सेड कि भाई आई एम नॉट आउटसाइडर, आई एम एन इंडियन, बट दे डिडंट गिव हिम एनी इंफॉर्मेशन। इंस्टेड दे आस्क्ड हिम टू गो अवे। उन्होंने कहा कि यहाँ से चले जाओ, अदरवाइज इट विल बी वेरी डिफ़िकल्ट फॉर यू, इट विल बी वेरी डेंजरस फॉर यू। महात्मा गांधी ने मना कर दिया।
सो इस दौरान जब महात्मा गांधी सारी डिटेल हासिल कर रहे थे तो उनको पता लगा कि किसी फार्मर को ब्रिटिशर्स ने बुरी तरह से एक्सप्लॉइट किया, उसको पीटा है। तो उसको देखने के लिए महात्मा गांधी एक हाथी की पीठ पर बैठ करके जा रहे थे। एट दैट टाइम ब्रिटिशर्स सेंट देयर मैसेंजर। उन्होंने कहा कि भाई तुरंत महात्मा गांधी को ऑर्डर दिया जाए कि ये यहाँ से चले जाएं, इस एरिया से, इस प्रोविंस से निकल जाएं। महात्मा गांधी ने मना कर दिया। तो एट दैट टाइम महात्मा गांधी गॉट द समन्स कि भाई सरकारी आदेश को मानने से मना कर दिया है, और तो आपको मजिस्ट्रेट के द्वारा आदेश दिया जाता है कि कोर्ट में पेश हो जाइए आप, बिकॉज यू हैड डिसोबेड द ऑर्डर ऑफ गवर्नमेंट। तो एट दैट टाइम महात्मा गांधी को जब कोर्ट में लाया गया तो ये भीड़ आप देख रहे हो। तो दिस काइंड ऑफ सीन वॉज देयर। thousands of people were standing outside the court, and you know why they were standing there. They were protesting against the decision of government. They were trying to nab महात्मा गांधी। तो इतने सारे लोगों को देख करके अंग्रेजों के हाथ पैर फूल गए। भाई आज तक तो कभी ऐसा नहीं हुआ था किसी इंसान को उन्होंने पकड़ा हो और उसको सज़ा देनी चाहिए और इस तरह से इतनी भीड़ आ जाए। एंड यू नो दैट मॉब जो होती है, अगर वो आक्रोश में है तो सामने कुछ भी हो, दे कैन स्पॉइल एवरीथिंग। इस भीड़ का सामना नहीं कर सकते थे दीज ब्रिटिशर्स। इतने गुस्से में थे कि महात्मा गांधी ने ही इनको थोड़ा सा पीसफुली रहने के लिए बोला, और अंग्रेज़ों ने देख लिया दैट महात्मा गांधी के कोऑपरेशन के बगैर ये इतनी भीड़ को संभाल नहीं पाएंगे। कोर्ट में क्या हुआ, द जज द मजिस्ट्रेट आस्क्ड हिम कि भाई आपने आदेश क्यों नहीं माना। तो महात्मा गांधी ने कहा कि भाई इट वाज अगेंस्ट माय कंसेंस। मेरी आत्मा ये कह रही थी कि भाई मुझे अपनी क्षेत्र के लोगों की हेल्प करनी है, और या तो मैं सरकारी आदेश मानता या अपनी आत्मा की आवाज़ को सुनता। आत्मा की आवाज़ ये थी कि यहीं पर रहना है और लोगों की हेल्प करनी है जो मुसीबत में हैं। तो दीज ब्रिटिशर्स वर एट दैट टाइम इन डिलेमा। वो समझ नहीं पा रहे थे कि भाई इस इंसान को सज़ा दें क्योंकि इन्होंने हमारी बात नहीं मानी है, या इसको छोड़ें। अगर सज़ा देंगे तो वो भीड़ आकर के अंदर गला पकड़ लेगी इनका। दे कैन डू एनीथिंग। इनके पास इतना टाइम नहीं था कि बाहर से बड़ी सेना को बुला ले, क्योंकि उस टाइम पर ऐसे फ़ोन्स वगैरह नहीं थे कि मैसेज भी भेजा जाता था तो टाइम लगता था। तो तब तक तो पता नहीं क्या कर देती भीड़। तो दे वर जस्ट इन अ वेरी डिफ़िकल्ट सिचुएशन। पनिश करें, सज़ा दें तो भीड़ इनको मारेगी आके अंदर, और अगर छोड़ दें तो सब कहेंगे डर गए। तो क्या करें, दे वर इन डिलेमा। सो उन्होंने डिसीजन किया कि भाई हम अभी फैसला नहीं सुनाते, थोड़ी देर बाद सुनाएंगे, 2 घंटे बाद, तब तक आप बेल ले लीजिए। तो महात्मा गांधी ने कहा कि भाई मैं बेल नहीं लेता हूँ, मैं तो गिल्टी हूँ, मैंने आदेश नहीं माना है, तो आप सज़ा सुनाइए। महात्मा गांधी न्यू कि ये सज़ा नहीं सुनाएंगे। तो जज ने कहा, मजिस्ट्रेट ने कहा कि भाई अभी हम फैसला नहीं सुनाते हैं, आपको बेल भी ऐसे ही दे देते हैं, आप आज़ाद हो जा सकते हो, हम फैसला बाद में सुनाएंगे। सो दे प्लेड अ ट्रिक। उन्होंने चालाकी चली, सज़ा भी नहीं दी, बेल भी दे दी, उस फैसला बाद में सुनाएंगे। तो इसका क्या मतलब है, सीधा सा है कि भीड़ चली जाएगी, बाद में फैसला सुनाएंगे। लेकिन उनको इतना तो पता था फैसला महात्मा गांधी के अगेंस्ट वो नहीं कर सकते थे, भले ही उन्होंने राजकीय आदेश नहीं माना था जाने के लिए। एंड यू नो वाई दे वॉन्टेड हिम टू गो। उनको पता था कि ये आदमी प्रॉब्लम क्रिएट करेगा, ये बहुत बड़ी भीड़ इकट्ठी कर देगा, और भीड़ इकट्ठी करने के बाद हमारे काबू से बाहर हो जाएगी सिचुएशन, ही कैन बिकम द लीडर। दे वर वेरी क्लेवर पीपल। उन्होंने चाल चली, उनको डरा करके भगाने की कोशिश की, बट वो नहीं गए, और उसके बाद खुद फंसे। भीड़ को देख करके डिसीजन को पेंडिंग छोड़ दिया, बाद में सुनाएंगे। और बाद में क्या सुनाया कि महात्मा गांधी को कोई सज़ा नहीं होती है, उनको उस चार्ज से रिलीज़ किया जाता है, मीन्स उन पर वो जो चार्ज था वो क्विट कर दिया जाता है। उसके बाद महात्मा गांधी को लेफ्टिनेंट गवर्नर की तरफ से बुलावा आता है, वहाँ पर जा कर के वो उनसे बात करते हैं। देन दे डिसाइडेड एक कमीशन बनाया जाए जो पूरी की पूरी सिचुएशन को इन्वेस्टिगेट करें। महात्मा गांधी वॉज द
रिप्रेजेंटेटिव फ्रॉम फार्मर्स साइड। उसके बाद महात्मा गांधी जी ने और ब्रिटिश प्लांटर्स ने और गवर्नमेंट ऑफिशियल्स ने मिल करके इन्वेस्टिगेशन की, बहुत सारे किसानों की गवाही ली गई और फिर बाद में पता लगा कि ब्रिटिशर्स द लैंडलॉर्ड्स वर एट फॉल्ट। और क्या सिचुएशन थी मैं अभी आपको यहाँ पर बता देता हूँ, जो कि मैंने स्टार्टिंग में नहीं बताई जानबूझ करके, क्योंकि आपको थोड़ा सा कन्फ्यूजन हो सकती थी। सिचुएशन ये थी दैट ब्रिटिशर्स had made a system that 15% land they had to grow indigo, the farmers, and the whole crop was surrendered as a rent. जो इंडियन फार्मर्स थे वो इस डिफ़िकल्ट एग्रीकल्चरल सिस्टम से निकलना चाहते थे, क्योंकि उनके लिए बहुत ही डिफ़िकल्ट था ये इंडिगो ग्रो करना और उनको सरवाइव कर पाना। and Britishers knew it very well. At the same time, Germany had developed synthetic indigo. जर्मनी ने सिंथेटिक इंडिगो बना लिया जो बहुत ही सस्ता था और क्वालिटी वाइज भी अच्छा था। एंड जर्मनी का ही जो इंडिगो था वो ऑल अराउंड द वर्ल्ड ज़्यादा एक्सपोर्ट होने लगा, डिमांड बढ़ गई उसकी, और फिर ये जो नेचुरल इंडिगो था इसकी डिमांड कम हो गई। तो ब्रिटिशर्स न्यू दैट अब उनको इंडिगो की खेती नहीं करनी थी, एंड एट द सेम टाइम दे वांटेड टू रिलीज द इंडियन फार्मर्स फ्रॉम ग्रोइंग इंडिगो। बट जाते जाते वो कहते हैं ना, भागते चोर की लंगोटी हाथ में आ जाना, मीन्स कुछ ना कुछ मिल जाना, जाते जाते कुछ प्रॉफिट मिल जाए। तो उन्होंने इस सिचुएशन का फ़ायदा उठाया, क्योंकि इंडियन फार्मर्स उस सिस्टम से आज़ाद होना चाहते थे। उन्होंने कहा कि हम आपको आज़ाद करते हैं, आप एक वन टाइम पेमेंट कर दो, इतने रुपए दे दो हमको, हम आपको आज़ाद कर देंगे, आपको इंडिगो की क्रॉप्स उगानी नहीं पड़ेगी। तो कुछ फार्मर्स ने तो दे दी और कुछ फार्मर्स ने मना कर दिया। उन्होंने लॉयर्स हायर कर लिए, ब्रिटिशर्स ने गुंडे हायर कर लिए, और वहाँ पर एक ऐसी सिचुएशन बन गई, तनातनी की सिचुएशन। और लॉयर्स भी कौन थे? इंडियंस ही थे, जो उन फार्मर से बहुत बड़ी फीस लेते थे उनके खिलाफ, उनके साथ, उनकी तरफ से ब्रिटिशर्स के खिलाफ लड़ने के लिए। तो जब महात्मा गांधी को ये बात पता चली तो उन्होंने इंडियन लॉयर्स को भी डांटा कि भाई आप अपने ही देश के गरीब किसानों की के लिए लड़ने के लिए इतनी बड़ी फ़ीस चार्ज कर रहे हैं। तो उन्होंने कहा कि कोर्ट में जाने का कोई फ़ायदा नहीं, इसका सोल्यूशन हम अलग से निकालेंगे। और ये सोल्यूशन क्या निकला? कमीशन बना, और उस कमीशन ने इन्वेस्टिगेशन की, पता लगा ब्रिटिशर्स जो थे उनकी गलती थी, उन्होंने गलत तरीके से, धोखाधड़ी से वो कंपनसेशन लिया था, और वो कंपनसेशन इंडियन फार्मर्स वापस चाहते थे, क्योंकि उनके साथ धोखा किया गया था। उनको इंडिगो की क्रॉप उगानी ही नहीं थी अब, बिकॉज जर्मनी ने सिंथेटिक इंडिगो डेवलप कर लिया था। तो अब इंडियन फार्मर्स जिन्होंने कंपनसेशन दे रखा था वो अपने पैसे वापस मांग रहे थे। तो ब्रिटिशर्स, जब प्लांटर्स को ये पता लगा कि दे वर एट फॉल्ट, दे वर रेडी टू गिव द मनी बैक। बट कितने पैसे वापस करें? वो सारे करें, कितने करें? एट दैट टाइम इट वॉज डिसाइडेड बाय महात्मा गांधी एंड द अदर मेंबर्स ऑफ द कमीशन। 25% महात्मा गांधी ने एक्सेप्ट कर लिया कि 25% पैसे वापस देंगे वो, कंपनसेशन जो इंडियन फार्मर्स ने दिया। हालांकि 25% बहुत कम था, वो 100% भी मांग सकते थे, बट महात्मा गांधी ने कहा बाद में कि ये जो 25% उन्होंने दिया ना, ये फर्स्ट टाइम ऐसा हुआ है कि ब्रिटिशर्स ने कोई पैसे वापस दिए थे। हिस्ट्री में पहली बार ऐसा हुआ था कि उन्होंने कोई पैसे वापस दिए थे। इट मीन्स दे वर गिविंग देयर रिस्पेक्ट, उन्होंने अपनी रिस्पेक्ट दी थी उसके साथ वापस। मीन्स आज तक उनको किसी ने चैलेंज नहीं किया था, आज पहली बार ऐसा हुआ था कि उन्होंने कुछ वापस दिया था, भले ही वो 25% था। तो एट दैट टाइम महात्मा गांधी टॉट द इंडियन पीपल कि इफ दे वर यूनाइटेड लाइक दिस, दे आर यूनाइटेड इन दिस पिक्चर, they could challenge the power of Britishers. So they had to be united. महात्मा गांधी ने शो कर दिया, टीच कर दिया इंडियन फार्मर्स को, और यहीं से ये टर्निंग पॉइंट था महात्मा गांधी जी के जीवन का, जब वो पॉपुलर हो गए पूरे इंडिया के अंदर एक लीडर के तौर पर। यहाँ से ये पहला सत्याग्रह के तौर पर जाना जाता है, चंपारण सत्याग्रह।
अब महात्मा गांधी वैसे तो आए थे यहाँ पर कुछ दिन के लिए, सोच करके कि कुछ दिन में प्रॉब्लम का सलूशन हो जाएगा, लेकिन ये कुछ दिन का नहीं था, ये 1 साल से ऊपर का समय लग गया महात्मा गांधी को। ब्रिटिश प्लांटर्स ने अपनी ज़मीन छोड़ दी, और वो जो ज़मीन थी वो इंडियन किसानों को ही मिल गई, उनकी बन गई वो ज़मीन। और लेकिन महात्मा गांधी जा सकते थे यहाँ से, लेकिन महात्मा गांधी ने और बहुत सारे चेंजेस किए यहाँ पर। चंपारण में बड़ी गंदगी थी, लोगों को यहाँ पर मोटिवेट किया साफ सफाई के लिए। महात्मा गांधी जी की वाइफ कस्तूरबाई भी यहाँ पर आई हुई थी, उन्होंने जो फीमेल थी यहाँ की, चंपारण की और बिहार की, उनको टीच किया। बहुत सारे वॉलंटियर्स को महात्मा गांधी ने यहाँ पर आने के लिए रिक्वेस्ट की, स्कूल्स ओपन किए गए, बहुत सारे हॉस्पिटल्स, मतलब ऐसा तो नहीं कहेंगे हॉस्पिटल, बहुत सारे ऐसे सेंटर्स खोले गए जहाँ पर लोगों की हेल्थ में भी इम्प्रूवमेंट की जाए। तो डॉक्टर्स को भी वॉलंटियर्स बनने के लिए बुलाया महात्मा गांधी ने ऑल ओवर द इंडिया। बहुत सारे लोग महात्मा गांधी के आह्वान पर यहाँ पर आए, और यहाँ के लोगों की ज़िंदगी में शिक्षा से संबंधित, सफाई से संबंधित, स्वास्थ्य से संबंधित बहुत सारे चेंजेस किए महात्मा गांधी ने। और यहीं से अपने आश्रम को भी चलाया उन्होंने, अपने लेटर्स वगैरह, मैसेजेस वगैरह भेज करके। तो कुल मिलाकर के ये जो चंपारण वाला एपिसोड था महात्मा गांधी की ज़िंदगी का, 1 साल से ऊपर का समय ले गया, और यहाँ पर महात्मा गांधी ने लोगों को बहुत बहुत कुछ सिखाया। यहाँ के लोगों की केवल पॉलिटिकल सिचुएशंस को ही नहीं चेंज किया, उनकी सोशल लाइफ को के अंदर भी बहुत सारे चेंजेस लेके आए वो। और इसीलिए इस चैप्टर को बड़ा इम्पोर्टेंट माना जाता है इन महात्मा गांधी जी की ज़िंदगी का। अब अगर आप चाहते हो तो ये पूरी बुक भी पढ़ सकते हो, लुई फिशर ने जो लिखी है लाइफ ऑफ महात्मा गांधी, उसका एक चैप्टर है जो हम यहाँ पढ़ेंगे। सो टुमारो वी आर गोइंग टू रीड द चैप्टर इन डिटेल, and here I have told you the summary, and I hope that you have understood it well. So let us meet tomorrow. Till then, take care my dear students. Bye.